Welcome student. In last period we have studied about operation on polynomials and the concept of rational expression. Okay. So today we will solve some examples of operation on rational expression. This type of addition, subtraction, how to do addition and subtraction, multiplication and division of rational expressions. So our first example is, what should be added to in bracket 1 upon x minus 2 plus 1 upon x plus 2 to get 4x cube plus upon x raised to power 4 minus 60. ओके, तो हमें ये जो एडिशन है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की जो एडिशन है उसमें और क्या ऐड करना होगा कि तब जाके हमें ये एक्सप्रेशन, ये रैशनल एक्सप्रेशन आंसर के तौर पर मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट कंसीडर, लेट m be the required एक्सप्रेशन. ओके, समझो कि m जो है वो एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जिसे हमें ऐड करना है इस एक्सप्रेशन में, तब जाके हमें ये एक्सप्रेशन आंसर मिलेगा. ठीक है, सो देयरफॉर वी विल ऐड m टू दिस 1 अपॉन x minus 2 plus 1 upon x plus 2 and then we will get 4x cube x raised to power 4 minus 60. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके ऑपरेशन पूरी कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे. सो m is equals to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकॉज डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, x plus 2 into 1 x plus 2, x minus 2 into 1 x minus 2 upon x minus 2 into x plus 2, x square minus 4. Okay, then is equals to 4x cube upon x raised to power 4 minus 60. Okay, x minus 2 into x plus 2, a plus b, a minus b है तो इसको a square minus b square लिख सकते हैं. b square यानी 2 का स्क्वायर वो 4 हो जाता है. ठीक है, अब m प्लस इन ब्रैकेट x plus 2 and minus 2 get cancel, so x plus x 2x upon x square minus 4 is equals to 4x cube upon x raised to power 4 minus 60. Now we will transfer this 2x upon x square minus 4 to right hand side for subtraction. Okay, so m is equals to 4x cube upon x square minus 4 x square minus 16, sorry, 4x cube upon x square minus 16 minus 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिलेगा. ठीक है, जब ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 सब्ट्रैक्शन के लिए इस साइड पे जाए. ठीक है, फिर नेक्स्ट m इक्वल्स टू, अब क्या होगा तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है. ओके, तो इसकी अरेंजमेंट में इस तरह से करता हूँ, 4x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 16 को मैं x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ. ठीक है, एंड देन दिस माइनस 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4. नाउ m इज इक्वल्स टू 4x क्यूब अपॉन दिस x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो वी कैन राइट x स्क्वायर, सॉरी x प्लस 4 एंड x माइनस x minus x square minus 16, x square minus 16 और x raised to power 4 16. Sorry, here is x raised to power 4, so we can write it as x square square. Okay, so now this is x square plus 4 and x square minus 4. Okay, so we can write this x square bracket square minus 4 square as x square plus 4 and x square minus 4 with the help of rule a square minus b square is equals to a plus b minus a plus b and a minus b minus 2x upon this x square minus 4. ओके, नाउ यहाँ पे भी x square minus 4 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी x square minus 4 है डिनोमिनेटर. तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको 1 upon x square minus 4 को कॉमन नेम निकाल लेता हूँ फिर. ओके, so it becomes 4x cube upon x square plus 4 minus this 2x only. Okay, in the next step m is equals to 1 upon x square minus 4
सो इट बिकम्स 4x क्यूब माइनस 2x की तरफ अभी x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन के लिए आ जाएगा, राइट, एंड देन x स्क्वायर प्लस 4 एज अ कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में m इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर माइनस 4 एंड इन ब्रैकेट 4x क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इंटू प्लस 4 माइनस 8x and upon this x square plus 4. Then in next step we can write it as 1/x square minus 4 into 4x cube minus 2x cube. How much? 2x cube, and this minus 8x upon x square plus 4. Now in next step m is equals to, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 4 है। अब देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन है और ये एक फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर दैट इज 2x क्यूब माइनस 8x है, तो इन दोनों में से मैं 2 and x कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट। अगर इस पूरे 2x क्यूब माइनस 8x में से 2x अगर कॉमन निकालूंगा तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, x स्क्वायर, 2x कॉमन निकल गया तो x स्क्वायर माइनस 4 only, minus 4 only, and upon this x square minus 4 and x square plus 4. Okay, so in next step m is equals to this x square minus 4 and x square minus 4 get cancelled, so 2x upon x square plus 4, it will be the required expression to get 4x cube upon x raised to 4 minus 16. Okay, तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। हमें उन्होंने ये पूछा था कि इस एक्सप्रेशन में हम कौन सा एक्सप्रेशन ऐड करेंगे कि तब जाके हमें ये रैशनल एक्सप्रेशन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने उसको एज्यूम किया कि लेट m बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, फिर m में वो एक्सप्रेशन ऐड किया हुआ हमने अरेंजमेंट की और आंसर के तौर पर जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दिखाया। फिर ये ऑपरेशन सॉल्व करने के बाद हमने उसको राइट साइड पे सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रांसफर किया और वो सब्ट्रैक्शन पूरी कंप्लीट होने के बाद जाके हमें आंसर मिला 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, सो इस तरह से इसमें एडिशन भी हो गई और सब्ट्रैक्शन भी हो गई। तो रैशनल एक्सप्रेशंस के एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इस तरह से की जाती है, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं वैसे ही इस पे अप्लाई करना है, ठीक है, वही रूल्स रहेंगे। बस जो मल्टीप्लिकेशन या फिर ब्रैकेट सॉल्विंग है वो अकॉर्डिंग टू द पॉलिनोमियल रहेगा। ओके, जिस तरह से हम ब्रैकेट्स का ऑपरेशन वगैरह सॉल्व करते हैं उस तरह से, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल लिखते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस के तौर पर एग्जांपल ही देखेंगे आज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1, b इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 एंड c इज इक्वल्स टू 4x minus 5 upon 2x square plus 5x minus 3, then find 4a minus 3b plus c. ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है 4a minus 3b plus c। इस पूरी रैशनल एक्सप्रेशन का ये चेन ऑपरेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, क्या एक्सप्रेशन आंसर के तौर पर मिलेगा, फाइंड आउट करना। ओके, सो सबसे पहले 4a माइनस 3b प्लस c, इस तरह से इसको अरेंज करें, ठीक है। अगर इस तरह से अरेंज करेंगे तो a की वैल्यू है x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, सो इट बिकम्स 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, राइट। देन माइनस 3
and B's expression is 2x plus 1 upon 3x plus 2. Okay, and then the last one C plus C is as it is 4x minus 5. Now you can directly take a factors of this quadratic equation 2x square plus 5x minus 3. You can solve it in rough. ओके 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6 के इस तरह से फैक्टर ढूंढो जो आपको 5 मिलेंगे 3 टू जा 6 मिडल नंबर का साइन ग्रेटर नंबर को 3 इंटू माइनस करना पड़ेगा तब जाके आपको माइनस में मिलेगा। तो आपको एक फैक्टर मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। ओके, तो इन दोनों में से आप क्या x कॉमन निकाल सकते हो 2x प्लस 3 ब्रैकेट में रहेगा और इनमें से एक माइनस 1 कॉमन निकाल सकते हो 2x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर। तो एक फैक्टर आपको डायरेक्टली 2x प्लस 3 मिलेगा एंड एक फैक्टर x माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डायरेक्टली फैक्टर्स यूज कर सकते हो। देन अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि डिनोमिनेटर तो किसी के सेम है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो सिर्फ इन दोनों को ही एज्यूम करो। एट अ टाइम तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा पहले इन दोनों का ऑपरेशन सॉल्व करो, इनका जो कंबाइंड आंसर आएगा उसको थर्ड एक्सप्रेशन के साथ हम सॉल्व करें। सो इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 है, उसकी तरफ ये 3x प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा, राइट। देन 2x माइनस 1 इस 2x प्लस 1 की तरफ मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा, राइट। एंड देन अपॉन ये दोनों फिर से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 एंड देन ओवर दिस सी एक्सप्रेशन 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ओके, नाउ 4 इंटू ये दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन कर लो x इंटू 3x स्क्वायर, राइट। x इंटू 2x 1 इंटू 3x 1 इंटू 2 ओके, माइनस 3 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर 2x इंटू माइनस 1 माइनस 2x 1 इंटू प्लस 2x ओके 2x प्लस एंड 2x माइनस 1 एंड देन प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस ओके एंड देन अपॉन इनको फिलहाल इस तरह से रखते हैं 2x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 एंड दिस 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 एज इट इज। ओके, देन 4 इंटू 3x स्क्वायर 2x प्लस 3x 5x प्लस 2 then this minus 3 4x square minus 2x plus 2x cancel, remaining is only minus 1 and this upon 2x minus 1 and 3x plus 2 then this plus 4x minus 5 upon 2x plus 3 into x minus। ओके, यहां तक हमारा आंसर आया। नेक्स्ट, अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, 4 इंटू 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर 4 इंटू 5x 20x 4 इंटू 2 8। ओके, नाउ माइनस 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 and 3x plus 2 and this 4x minus 5 upon 2x plus 3 and x minus 1 as it is। okay, the next term plus 12x square and minus 12x square cancel। okay, so remaining term is 20x plus 11। okay, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो 2 यहाँ पे 2x माइनस 1 राइट, यहाँ पे 3x प्लस 2 है
2x+3 कुछ कॉमन निकलने जैसा तो है नहीं, ओके, कॉमन तो निकलना चाहिए था। 2x+3 लिया, 3x+2 भी लिया, 2x-1 भी लिया, कॉमन तो निकलना चाहिए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 3 जा 6x², 2x इंटू +2 4x, -1 इंटू 3x -3x, -1 इंटू +2 -2, ओके, एंड इंटू 4x -5 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2x+3 एंड x-1। फिलहाल इसको इस तरह से रखूँगा, ओके, क्योंकि जब तक हमें एक कॉमन टर्म नहीं मिलेगी बाहर निकालने के लिए वो रहनी चाहिए। इसके फैक्टर्स में कुछ चेंज हुआ हमें, इसके फैक्टर्स बराबर नहीं देगा हमें। 2x³ स्क्वायर प्लस 5x -3 -6x, -3 फैक्टर्स क्या लिए थे हमने, -3x एंड -2x, तो नहीं होता, +3x लिया तो भी नहीं होता। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वैल्यू गलत लिखी है, ये है प्रॉब्लम, ये इक्वेशन गलत थी क्योंकि इसके फैक्टर ही बनते नहीं ना, ये दोनों फैक्टर बनते नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं करना था, तो ये मैंने प्रॉब्लम ही गलत लिखा, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, सो -3 और -2 यहाँ पे माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज 2x -3 और x+1 हो जाएगा। ये प्रॉब्लम की एक्सप्रेशन गलत हो गई, ओके। नेक्स्ट हम इसको करेंगे कंप्लीट, फिलहाल के लिए इतना रख, ओके। एक एक्सप्रेशन गलत हो गई, इसको कल ही देखेंगे। थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का। इक्वेशन है 3x² प्लस 8x -3 अपॉन 2x² -x -6 इंटू x² -4 अपॉन x+3। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 3 3 जा 9 -9, ओके। -9 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो +1 में रखे, सो ऑब्वियसली 9 1 जा 9। मिडिल टर्म का साइन ग्रेटर नंबर को प्लस में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके माइनस मिलेगा, तो आपको इसकी एक्सप्रेशन मिलेगी आपको 3x² प्लस 9x -3 अपॉन, अब इसके एक्स फैक्टर्स ढूंढेंगे हम, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू -6 -12 के इस तरह से फैक्टर जो 1 मिला के देंगे, सो 4 3 जा 12, 4 - 3 1, ओके। दिस नेगेटिव साइन फॉर ग्रेटर नंबर, माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस मिलेगा, ओके। सो फैक्टर्स बनेंगे 2x² एज इट इज -4x प्लस 3x एंड दिस -6 इंटू दिस x² -4 एज इट इज रखो, इस x² -4 को आप x² -2² लिख सकते हो, राइट, एंड दिस x+3। नेक्स्ट 3x² प्लस 9x -x -3,
ओके, इन दोनों से क्या कॉमन निकलता है हमारा 3x कॉमन निकलता है, रिमेनिंग क्या बचे रहेगा x प्लस 3। नाउ इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा -1 और ब्रैकेट में फिर से x प्लस 3 अपॉन सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन रहेगा 2x एंड रिमेनिंग x माइनस 2, राइट, एंड देन दिस प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन निकलेगा अगेन x माइनस 2। ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इनमें क्या कॉमन, इसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के एग्जांपल से x प्लस 2 एंड x माइनस 2 अपॉन दिस x प्लस 3। इन नेक्स्ट स्टेप x प्लस 3 दोनों की जगह कॉमन है, इसको एक बार लिख लिया 3x माइनस 1, वो एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पे x माइनस 2 दोनों की जगह कॉमन है, x माइनस 2 एक बार ले लिया, 2x प्लस 3 एक बार ले लिया इंटू दिस x प्लस 2 एंड x माइनस 2 एंड अपॉन x प्लस 3। ओके, अब दिस x प्लस 3 ऊपर भी है, ये x प्लस 3 नीचे भी है। अब देखो ये कैंसलेशन तभी होता है जब सब रैशनल एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में, ओके, अगर उनमें अगर एडिशन होती हो तो वो कैंसल नहीं होंगे। दिस x माइनस 2 एंड दिस x माइनस 2, so your remaining is 3x minus 1 and this x plus 2 and upon 2x plus 3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, इनका ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर 3x इंटू प्लस 2 प्लस 6x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू प्लस 2 minus 2 upon this 2x of 2x plus 3 3x square 6x minus x plus 5x and minus 2 upon 2x plus 3 is the final solution for the multiplication of given expressions। okay, so multiplication हम इस तरह से करेंगे, बस फ्रैक्शनल जो नंबर्स है जिनको उनको हम जैसे सॉल्व करते हैं बस वही रूल्स हमें लेना है। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, ओके। और जब जाके हमें फैक्टर्स मिलते हैं सब पॉलिनोमियल्स के पूरे इक्वेशंस के, तो उन फैक्टर्स का हम कैंसिलेशन कर सकते हैं अगर वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों में हो तो, ओके। और एग्जांपल ऑफ डिवीजन का देखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, fourth one is 2x square plus 6x upon 3x square plus 7x plus 2 divided by x square plus x minus 6 upon 3x square plus 7x plus 2। ओके, इस तरह से प्रॉब्लम दी है। बात सिंपल है, बस कुछ भी नहीं करना है आपको। 2x स्क्वायर प्लस 6x जिस तरह से आपको दिया है बस उस तरह से रखो। इस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इसको भी इसी तरह से रखो। करना क्या है, जब भी आप फ्रैक्शंस की डिवीजन सॉल्व करते हैं तब हमारी प्रोसेस क्या होती है, उस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाओ और उसके बाद आने वाली टर्म का रेसिप्रोकल लो। रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह जाएगा एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह जाएगा। ठीक है, अब जाके अगर हमने ऑब्जर्व किया है समझो अच्छे से, तब जाके हमें समझ में आएगा कि ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 एंड दिस 3x प्लस 7x प्लस 2 सेम, तो डायरेक्टली कैंसल हो जाएगा। अब रिमेनिंग 2x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन दिस x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, बस इसको ही सॉल्व करना। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। सो हमारे पास x प्लस 3 बचेगा
राइट। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। -6 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढो जो आपको 1 मिला के देंगे। सो 3 2 6, दिस एडिशनल साइन इज फॉर ग्रेटर नंबर। 3 इंटू माइनस कर प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस मिलेगा। सो अब देखो यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली x+3 एंड x-2 इस तरह से दोनों फैक्टर्स ले सकता हूँ। Now this x+3 get cancel. So 2x upon x-2 is our final answer. Okay? So इस तरह से डिवीजन करनी है, मतलब कुछ अलग नहीं करना है। जिस तरह से फ्रैक्शंस में हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल लेकर उसी वे से इन एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना है। और जो कॉमन फैक्टर्स है उनको कैंसिल करके या फिर डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके भी आप उनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। और एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो भी डिवीजन का ही है। Okay, so our 5th example is if a is equals to 2x cube plus 5x square, 2x cube plus 5x square plus 4x plus 1 plus 4x plus 1 and b is equals to 2x square plus 3x plus 1, 2x square plus 3x plus 1. Find a upon b. Find a upon b. ओके, अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे हम a अपॉन b। तो ये अरेंजमेंट हो जाएंगे 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब अगर हम गौर से देखेंगे तो क्यूब के फैक्टराइजेशन करना हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रॉपर मेथड नहीं। ओके, लेकिन क्यूबिक टर्म है, ऊपर जो दिया है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अगर हम डायरेक्टली फैक्टर्स में निकाल सकते हैं तो उसको अरेंज कुछ तो भी अरेंज करना पड़ेगा, एक आउट ऑफ द बॉक्स मेथड करनी पड़ेगी जिससे हमें कुछ ना कुछ सॉल्व होके मिले, मतलब लास्ट में डिवीजन होके। ठीक है। सो ए अपॉन बी, तो इसकी अरेंजमेंट में किस तरह से करता हूँ देखो, 2x क्यूब है, इस 5x स्क्वायर को मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इस तरह से लिखता हूँ। ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो 5x स्क्वायर था उसको इस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर के फॉर्म में उसको स्प्लिट किया। ठीक है। नेक्स्ट ये 4x है, इसको मैं क्या करता हूँ प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इस फॉर्म में डिवाइड करता हूँ। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 4x को क्या किया 3x प्लस x की फॉर्म में डिवाइड, ओके, सेपरेट किया अपॉन दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। नेक्स्ट अब क्या करता हूँ मैं 2x क्यूब लिखा साथ में। ठीक है। यहाँ पे ये 3x स्क्वायर लूँगा एंड देन दिस अगेन मैं लूँगा दिस x लूँगा प्लस x लूँगा। ठीक है। मैंने ये टर्म एंड दिस टर्म साथ में, ओके, इनका एक ग्रुप बना प्लस अब रिमेनिंग टर्म कौन सी है हमारी 2x स्क्वायर है, इसका अलग ग्रुप बनाते हैं, ये 3x है एंड दिस प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। अब देखो ऊपर भी वही ब्रैकेट मिल रहा है, नीचे भी वही, तो डायरेक्टली कैंसिल होंगे क्या ये? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एडिशन में है, एडिशन में तो हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसके लिए और एक अरेंजमेंट करनी पड़ेगी हमें, तो इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं, मेथड अलग से कर रहे हैं। अब देखो 2x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस x है, तो हर टर्म में x है, तो इस x को कॉमन निकालो। अब क्या बचेगा हमारे पास, 2x क्यूब था तो स्क्वायर बचा। ठीक है। स्क्वायर था तो सिर्फ लीनियर टर्म 3x बची,
यहाँ पे सिर्फ x था तो अब वो बाहर कॉमन निकल चुका है तो अब 1 बचा। देन दिस प्लस एंड दिस ब्रैकेट अगेन एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओके एंड डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वो एज इट इज रहेगा ये हर बार कॉमन। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो x और ये ब्रैकेट पहला स्क्वायर ब्रैकेट ये कंप्लीट वन टर्म है। देन दिस प्लस और ये अगेन एक ब्रैकेट है वो सेकंड टर्म। दोनों भी टर्म्स में क्या कॉमन है? ये ब्रैकेट कॉमन है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का जो ब्रैकेट है वो दोनों भी टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो उसको हम कॉमन निकालेंगे। अभी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 उसको हमने कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या हमारे पास? ये x बचा और प्लस एंड प्लस के बाद का टर्म कॉमन निकल चुकी है, अभी कुछ नहीं मतलब वहां पे 1 बचा। ठीक है, एंड देन दिस इन डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज। अब ये दोनों कैंसिल होंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, अब बचा हमारे पास x प्लस 1 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो a upon b is equals to x plus 1। ओके, इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं। और एग्जांपल देखेंगे, ये समझ में आया सबको? बस कब जाके अब जहाँ पे हम फैक्टर्स निकाल नहीं सकते तो वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट दी होती है, मतलब वो हम कर सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए। ओके, तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉल्व करके देखेंगे तो वो हमें समझ में आएगा कि हमारा जल्दी से चल जाएगा कि डिनोमिनेटर में जो अगर ये टर्म दी है तो इसी तरह की टर्म हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं क्या। ओके, क्योंकि जब तक हम ऐसी कैंसिलेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus 2 upon x minus 2 minus x minus 2 upon x plus 2 and then again minus 8x upon x raised to power 2 minus 16 bracket complete divided by 8x upon x raised to power 4 minus 16। ओके, तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम दिया है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम एट अ टाइम ये तीनों भी ऑपरेशन सॉल्व करने से अच्छा पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर इसको तीसरे के साथ ऑपरेट करें। ठीक है, सो फर्स्ट x प्लस 2 x यहाँ पे x प्लस 2 अपन x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपन x प्लस 2 डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो x प्लस 2 और x प्लस 2 की दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, सो x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, राइट। माइनस x माइनस 2 और x माइनस 2 की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 2 साथ में आएंगे। ओके, तो इनको और आगे कर सकते हैं हमारे, फिलहाल इतना है 8x upon x raised to power 2 minus 16 and then divided by 8x upon x raised to power 4 minus 16। ओके, नेक्स्ट अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4x प्लस b स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 4 देन दिस माइनस। ओके, ब्रैकेट अगेन ओपन करेंगे हम, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4x प्लस b स्क्वायर मीन्स 4। ओके, देन अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 we can write it as x square minus 4। ओके, then this minus 8x upon x raised to power 2 minus 16, so we can write x square minus 4 square। Okay, and then this division 8x
अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। इसकी अरेंजमेंट फिलहाल इसी तरह से देखेंगे। ओके, देन अब ये ब्रैकेट्स पूरे कंप्लीट ओपन कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 दिस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 अपॉन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय 8x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। ओके, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है इसकी अरेंजमेंट में किस तरह से कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर है ना, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4। ओके, एक्स प्लस 4 एंड एक्स माइनस 4 इसी तरह से करेंगे ना, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 4 तो इस टर्म में। देन अब कैंसिल क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4 एंड माइनस 4 कैंसिल हो गए, प्लस 4x एंड प्लस 4x 8x अपॉन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस माइनस अगेन एंड 8x अपॉन दिस x प्लस 4 एंड x माइनस 4। ओके, 4 स्क्वायर हो गया x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर 4। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट डिवीजन 8x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। नेक्स्ट और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें से, 8x कॉमन निकाल सकते हैं। पहले 8x कॉमन निकालेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन निकलने जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ पर x प्लस 4 x माइनस 4, सो यहाँ तो अरेंजमेंट नहीं बनेगी, फिलहाल इसको इसी तरह से रखेंगे, 2 ही हो, इसका x प्लस 2 एंड x माइनस 2 ही होगा। ओके, 16 ही है ना, x प्लस 4 x माइनस 4 कॉमन निकालता आना चाहिए था, x माइनस 4 तो कॉमन निकलना है, 8x निकालेंगे फिलहाल अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक काम करेंगे, इसको और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्क्वायर में 16 ही है ना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 16 ही पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने वाले थे, एक्स स्क्वायर कैंसिल करने में हमें आसानी है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 and then divided by 8x upon x raised to 4 minus 16 upon now 8x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनेगा, लेकिन ये माइनस उसका साइन क्या कर देता है, चेंज कर देता है, अपॉन ये जो दोनों हैं एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 4 एंड एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 16, तो मैं एज इट इज लेता हूँ एंड देन दिस डिवाइडेड बाय 8x अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल। ओके, नाउ हमारे पास 8x है अपॉन समथिंग इज कुछ नहीं 1, ओके, इनटू माइनस 16 प्लस 4 हाउ मच, माइनस 12 upon this x square minus 4, okay, and x raised to power 2 minus 16 and again डिवाइड डिवीजन का ये क्या कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा x raised to power 4 minus 16 अपॉन 8x आ गया डिवीजन। ओके, रेसिप्रोकल हो गया डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, देन अब ये 8x और ये 8x कैंसिल कर सकते हो, अब आपके पास बचा माइनस 12 एंड दिस एक्स रेज टू पावर 4 को मैं स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, इस एक्स रेज टू पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, 4 का स्क्वायर, देन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4,
इसको 2 स्क्वायर यानी x प्लस 2 x माइनस 2 इस तरह से स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। एंड x रेज़ टू पावर 2 माइनस 16 इसको क्या कर दूंगा x प्लस 4 एंड x माइनस 4 इस फॉर्म में स्प्लिट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस स्क्वायर एज इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन दिस वन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ये गलती कर लेंगे। ये जो था कैंसिल होने में काम में आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 रिमेनिंग वाला क्या बचा, ये एक्स प्लस 4 और ये कैंसिल होने के लिए है क्या, किसी के साथ कैंसिल हो सकता है क्या, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 नहीं होगा, ओके। कैंसिल हो जाएंगे ये दो और बचा हमारे पास माइनस 12 दिस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 4, ओके। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 स्क्वायर ही हो जाएगा, कैंसिल नहीं होने के लायक नहीं होते। दिस विल योर फाइनल टर्म, ओके। आया समझ में? तो पहले इन 3 टर्म को सॉल्व किया और फिर उसको डिवाइड किया नेक्स्ट टर्म के साथ विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ओके। कुछ भी छोटी सी मिस्टेक हो गई तो फिर लास्ट आंसर मिलता ही नहीं जैसा चाहिए बस, ओके। तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और लेंगे प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल, ओके। Next question 7, x square plus 2x plus 3 upon x raised to power 4 plus 4x cube plus 4x cube plus 4x square and then minus 9, okay। इस तरह से प्रॉब्लम लिया है, ओके। अब इनमें कॉमन क्या निकालना, वो इससे पहले हमने जैसे देखा था कि जिसमें ऐसा ये कौन सी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, और या फिर क्यूबिक इक्वेशन है, उनमें फैक्टर्स निकालना थोड़ा सा हार्ड जाता है, तो उनके लिए कुछ अलग अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो ऊपर के न्यूमरेटर को तो कुछ नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा हर टर्म, ठीक है। आपको करना क्या है, बस लास्ट जो डिनोमिनेटर है उसको ही अरेंज करना है होगा उस वे से। तो इस x रेज़ टू पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन दिस प्लस 4x क्यूब के बारे में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले इस 4x स्क्वायर को मैं 2x ब्रैकेट स्क्वायर कर सकता हूँ, ओके। एंड देन दिस माइनस 9 एज इट इज, ओके। अब x स्क्वायर है एंड 2x है, x स्क्वायर है एंड 2x है, इसको साथ में मैं 2 लेता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर 4 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ओके मिडल टर्म। देन 2x का ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो हमने इस पूरे ये जो इक्वेशन ये जो टर्म है हमारी, इसको हमने किस तरह से सॉल्व किया, ये जो टर्म है हमारी इसको मैंने इस फॉर्म में अरेंज किया, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन ये किसका एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर है उसका एक्सपेंशन, मतलब ये ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x का ब्रैकेट स्क्वायर है, ओके।
okay, and then this minus 9. The next step x square plus 2x plus 3 as it is. अब देखो ये ब्रैकेट का स्क्वायर है, consider this bracket as a, okay, consider this bracket as a, this is your complete a term और उसका स्क्वायर a square minus this is your b square, okay, अब ये बन गया a square minus b square. Now again numerator as it is x square plus 2x plus 3 upon a square minus b square का expansion a plus b and a minus b. So what is your a plus b? X square plus 2x plus 3 and another is x square plus 2x minus 3. Now both of these will get cancelled and 1 upon x square plus 2x minus 3 is your final. Okay, this way you can solve this by quadratic equations division. Okay, आया समझ में? लास्ट लेंगे, ठीक है? फिर हमारा यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कंसेप्ट टॉपिक खत्म. नेक्स्ट लेंगे हम हमारा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, लास्ट एग्जांपल है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4. व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 2x square plus 3x minus 4 to get 4x raised to power 4 minus 9x square plus 24x minus 16. ओके, इस पॉलिनोमियल को हमें किस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि तब जाके हमें ये आंसर मिलेगा. ओके, तो वही लेट m बी द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. Let m be the required expression. So we will multiply this m with that 2x square plus 3x minus 4. Then we will get the multiplication as 4x raised to power 4 minus 9x square plus 24x minus 60. Okay. Now we have to find that m. So m is equals to becomes this multiply 2x square plus 3x minus 4 is for multiplication and then goes for division. So 4x raised to power 4 minus 9x square plus 24x minus 16 divided by 2x square plus 3x minus 4. ओके, अब जाहिर बात है कि हमें ऊपर ही कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी कि हमें नीचे वाले जैसी कुछ टर्म्स मिलने को है. ओके, देन ये 4x रेज़ टू पावर 4 है. ओके, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2x स्क्वेयर का ब्रैकेट स्क्वेयर लिख सकता हूँ क्योंकि 2 का स्क्वेयर 4 होता है, स्क्वेयर का स्क्वेयर x रेज़ टू पावर 4 होता है. ओके, देन दिस माइनस. अब देखो, हाँ, ये ध्यान में रखो, ये आगे की जो पूरी टर्म है मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ब्रैकेट में ले रहा हूँ या फिर ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, तब जाके साइन चेंज होती है अगर सब्ट्रैक्शन हो तो. यार ठीक है, ये 9x स्क्वेयर एज इट इज प्लस है तो ये माइनस 24x बनेगा, राइट, एंड देन दिस माइनस 16 है तो प्लस 16 बनेगा. ओके, एंड अपॉन दिस 2x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4. नाउ m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या अरेंज कर सकते हो आप लोग इन सब पूरे इक्वेशन में.
माइनस, इसकी अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हो? 9x स्क्वायर की अरेंजमेंट 3x ब्रैकेट स्क्वायर कर सकते हो, माइनस दिस इज 2 इंटू 3x, दिस 16 के अरेंजमेंट 4 स्क्वायर कर सकते हो, एंड ये आपके 4 है। ओके, अब देखो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। नाउ 2 इंटू a इंटू b, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, राइट, हो गया अरेंजमेंट। नाउ अपॉन दिस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, m इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म एज इट इज रखो, 2x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ओके, ये किसका एक्सपांशन है? ये जो एक्सपांशन है वो किसका है? a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, a क्या है हमारा 3x माइनस b क्या है 4 ब्रैकेट स्क्वायर, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ओके, सो m इज इक्वल्स टू, नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस कंप्लीट ब्रैकेट b स्क्वायर, ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा? a प्लस b इंटू a माइनस b, ओके, ये क्या बन जाएगा? प्लस 4 बन जाएगा, वाई? क्योंकि ये ब्रैकेट है 3x प्लस, ओके, एंड देन अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, सो m इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, नीचे भी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, दोनों भी कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, बस ये ब्रैकेट हमारे पास बाकी रहा, दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन, ओके, इट इज अवर m, ओके, बस इतना ध्यान में रखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है ये एक्सपेंशन, क्योंकि a प्लस b करते हैं, हम प्लस करते हैं तब इसके ब्रैकेट के साइंस को कुछ फर्क नहीं गिरेगा, वो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन जब a माइनस b करते हैं तो वो माइनस इसका साइन चेंज करता है और ये प्लस 4 बना रहता है, बस यही हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये लास्ट टर्म हमारी बाकी रहेंगी, और इस तरह से हम वो m दैट वाज आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम थे ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस पर, ठीक है, जिसमें हमने एडिशन भी देखी, मल्टीप्लिकेशन भी देखी, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब देख लिया, ठीक है, इससे पहले हमने उसका एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में भी देखा, ठीक है, तो जब हम 9 तक थे या फिर इससे पहले हमारा तो पूरा पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट हो चुका था, लेकिन जो एडवांस्ड है एचसीएफ एंड एलसीएम और उसके अलावा ये पूरा टॉपिक ये भी हमारा अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल बोथ एंड हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स, ओके, ज्यादा फोकस हम उस पर करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके, क्योंकि वही ज्यादा दिक्कत देने वाली बात है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखेंगे, वो टॉपिक हम शुरू करेंगे कल से, ओके।